पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या एक्चुअल में, इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? So personal branding, I would say, is something that is called when you are not in the room, what people are saying about you. तो आपने फर्स्ट इनकम क्या अर्न करी थी? It was 1,000 rupees, I guess. तो अभी आप लिंक्डइन से कितना मंथली अर्न कर रहे हो, आप ये बता सकते हो? So I am earning between. होता है कोई भी मतलब बिगिनर अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकता है? Okay, so there are 2 to 3 ways to find a client. तो जैसे कोई बिगिनर है वो स्टार्ट आउट कर रहा है जस्ट, तो वो कैसे बन सकता है पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट? So I would say कि स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको शुरू बहुत स्मॉल बेस पे करना पड़ेगा. You are not gonna get overnight viral and you can't start a overnight एजेंसी शुरू कर लिया और यार फिगर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता. जो फ्रीलांसर्स स्टार्ट आउट कर रहे हैं वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि हर मंथ उनके पास क्लाइंट रहे? आई थिंक फ्रीलांसर्स बड़े बड़े भी नहीं इंश्योर कर सकते कि हर मंथ क्लाइंट आए उनके पास. हाय भावना, वेलकम टू द सिस्का शो। तो कैसे हो आप? Hi everyone. I'm very excited to be here. Yeah, thank you so much for asking. I'm प्लीज good. गिव योर स्मॉल इंट्रोडक्शन, हमारी ऑडियंस आपके बारे में जानना चाहती है। Of course. So I am Bhavna Sharma, a mom, a personal branding strategist for founders and coaches, and I also create content on LinkedIn for myself to create my own personal brand and help other freelancers to start their own journey on LinkedIn. And I've recently started on Instagram as well. So yeah, that's me. दैट्स ग्रेट। सो लाइक आपने अभी बोला कि आप पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हो और मॉम भी हो, तो अभी आप लिंक्डइन से कितना मंथली अर्न कर रहे हो, आप ये बता सकते हो? So I am earning between 1.5 to 2.5 depending on how the month is going, because I anyway work between 5 to 7 clients in a month. So it depends on how many clients I have in that particular month. So it fluctuates between that range. Wow, लाइक आपने कब से स्टार्ट किया था, आप ये भी बता सकते हो कि आपने कब स्टार्ट किया, कितने मतलब ईयर हो गया आपको इस I फील्ड में? started 4 years ago in 2020 as a content writer and gradually learned content writing, say copywriting, and then I started understanding social media more, and then slowly it graduated towards personal branding. And now I'm working with founders and coaches who are trying to build their own personal brand like that. And I used to write website content before, but now it's totally focused on social media content. वाह, मतलब आपने स्टार्ट किया था कॉपी राइटिंग से, मतलब कंटेंट राइटिंग से, और देन अभी आप पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट हो और आप 1.2 के इससे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हो। ये काफ़ी इंस्पायरिंग है सच में। एज ए मॉम तो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है, आपसे सब रिलेट करने वाले हैं, हमारी ऑडियंस भी। तो अभी हमारा ये है कि लाइक पर्सनल ब्रांडिंग होता क्या एक्चुअल में, इसमें क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? So personal branding, I would say, is something that is called when you are not in the room, what people are saying about you. So it's about the presence that you create. सबका personal brand है, whether you are offline or online. Online में बस हमारे पास जो हमारा geographical location का foundation है offline में, वो हट जाता है, and you can reach out to global audience through your social presence. So what you do is जब आप LinkedIn या कोई भी social media platform पे अपना personal brand बनाना शुरू कर रहे हो या बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपनी एक्सपर्टीज और अपना पॉइंट ऑफ लेकर आओगे और आप अब उसको पोजीशन करोगे इन अ वे ताकि लोग आपसे रिलेट करें, ताकि लोग समझें. तो वट एवर वे यू आर पोजिशनिंग योर सेल्फ ऑन सोशल मीडिया, वेदर बींग अ humble person, whether being a workaholic, hard worker, friendly, or when it comes to like professional, so you are talking about, oh, I'm good at sales, I'm good at a particular niche that you are picking in. So personal branding is about showcasing that expertise on that particular platform that helps you position yourself in a way that people know you from your particular niche, know you from your uh, projection, your work, so that it becomes a synonym to your name. For example, if you go for Shreya Patar, everybody know that she's somebody LinkedIn girl or got popular by that particular niche. So that's the synonym that you become. Your work become your synonym, or whatever position you go for. So you become that particular person. So that's what personal brand is. I think it's about your social presence and social positioning on a particular platform. बट आपने बिल्कुल परफेक्ट एग्जांपल ऐड कर दिया है। हाँ, तो जैसे कोई बिगनर है वो स्टार्ट आउट कर रहा है जस्ट, तो वो कैसे बन सकता है पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट? सो आई वुड से कि स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपको शुरू बहुत स्मॉल बेस पे करना पड़ेगा. यू आर नॉट गोना गेट ओवरनाइट वायरल एंड यू कांट स्टार्ट ओवरनाइट एजेंसी शुरू कर लिया और मैंने 1 लाख कर लिया, 6 फिगर बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होता. व्हेन यू स्टार्ट
तो आपको अगर पहले फोकस करना है कि मैं किस चीज में अच्छा हूँ, यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू एक्चुअली लाइक टू डू. इफ यू लाइक टू डू राइटिंग, इफ यू वांट टू डू business development part of it, if you are good at designing, for example, there is this guy called Nick Brockman who only focused on design aesthetic on social media. So he's building his agency towards that, right? So you need to find out what you are actually good at to understand what I'm going to build my personal brand on, to that particular topic. So when you start building your content, when you start creating your own presence, first focus on that, what you want to bring to the table. And जब आपको अपने समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बेचना चाह रहा हूँ, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ, तो उसे बेचना भी आसान हो जाएगा. तब आपको उसके लिए क्लाइंट्स भी आसान हो जाएंगे. That's how you started Zero. जब मैंने शुरू किया था एज अ कंटेंट राइटर, तो कोविड चल रहा था, सब घर पे बैठे हुए थे और किसी के पास कुछ काम नहीं था. आई यूज्ड टू वर्क एज अ प्रोफेसर. जब कॉलेज ऑनलाइन शुरू हुए तो आई वाज लाइक ओके, ये तो बहुत बोरिंग हो रहा है, नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चों को ऑनलाइन. एंड देन आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम आल्सो, सो आई डिसाइडेड कि कुछ ऐसा फाइंड करते हैं काम जो बच्चे के साथ आई विल बी एबल टू डू फ्रॉम होम. तो वो मोटिवेशन था शुरू करने के पीछे. तो जब मैंने कंटेंट राइटिंग शुरू किया था, आई यूज्ड टू डू 12 पैसा पर वर्ड पे आर्टिकल्स अबाउट लैपटॉप्स अंडर 10,000 rupees, और what your boyfriend, what to gift your principal, those kind of articles. तो वहाँ से शुरू किया था. और उसके बाद एक एजेंसी में पार्ट टाइम मैंने काम करना शुरू किया. और वहाँ मुझे समझ में आया कि सोशल मीडिया राइटिंग एक अलग प्रपोजिशन है, एक अलग नीश है जिसमें लोग काम कर रहे हैं. उससे पहले तो मुझे आइडिया ही नहीं था कि ये भी कुछ हो रहा है. तो वहां से मैंने शुरू किया. एंड देन आई थिंक एवरीबडी नोस हेली चैटर्जी. तो शी वाज conducted a master class and everything, so I went to her free YouTube content, free one only. I didn't get through her course, but only free. And I understood ki okay, this is a massive business and I can do something in it. So I started pitching people कि I want to work with you, etc. तो मेरे ख्याल से जब किसी को नया भी शुरू करना है, they have to do one thing. They need to find out what they want to work in, and then start their own social presence first and slowly go forward. राइट. आपने जिस तरह से बोला कि आपने मतलब कोविड के टाइम पे स्टार्ट किया था और आज आप इतना ज़्यादा अर्न कर रहे हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आपसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जाकर आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी जर्नी कैसी थी, आपसे सीख सकते हैं, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू सीख सकते हैं लोग ऑल्सो. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइक अभी आपने बोला कि भी क्लाइंट फाइंड कर सकते हैं, तो कैसे क्लाइंट फाइंड कर सकता है कोई भी, मतलब बिगिनर फर्स्ट अपना फर्स्ट क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकता है? Okay, so there are 2 to 3 ways I would say to find a client. One is inbound. So when you create your own presence on social media, when you talk about your services on LinkedIn or Instagram, तो लोग आपके पास खुद आएंगे कि मुझे भी काम आपके साथ करना है या करवाना है, राइट? और दूसरा वे है आउटबाउंड, कि आप लोगों को रीच आउट करोगे. जब आप बिगिनर होते हो तो एक हेजिटेशन होती है एंड पीपल आर लाइक कि हम आप नए हो, आपको काम नहीं आता, हम आपके साथ काम क्यों करें? तो वन आई वुड से कि योर ओन प्रेजेंस वुड बी अ बिग मोक, कि आप दिखा सकोगे कि मैंने अपना बनाया है तो मैं आपका भी कर सकता हूँ. वन वे इज दैट you can help other people, your friends around your business. For example, जब मैंने शुरू किया था तो मेरे घर के पास एक टॉयज की शॉप थी. तो मैंने उन अंकल को बोला कि मैं आपके लिए इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना शुरू करती हूँ. और उन्होंने नई शॉप खोली थी और मैंने बोला मैं आपके लिए फ्री में करती हूँ. तो कोविड के टाइम पे मैंने उनका कंटेंट बनाना शुरू किया इंस्टाग्राम पे. और मैंने 2 महीने उनका कंटेंट बनाया और उनके पास हनुमानगढ़ के जो हमारा होम टाउन है उसके आसपास के लोगों ने आना शुरू कर दिया. बच्चों के स्पेशली यंगस्टर्स जो हमारी एज के थे कि अच्छा नहीं के लिए उस पे ये मिल रहा है, सेल चल रही है, कुछ चल रहा है. तो वो लोग वहां जाना शुरू कर दिया. तो उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा यार ये तो ठीक है. तो वहां से मुझे उनका टेस्टिमोनियल मिल गया, उनके रिजल्ट्स मिल गए, जो मैंने एक पोर्टफोलियो बनाया. देन आई स्टार्टेड पिचिंग पीपल जो मुझे पैसा दे सकेंगे वो काम करने के. जैसे फिर मैंने उसके बाद हमारी एक ब्यूटी सलोन था घर के पास में, उनको पिच किया. उनको फिर मैंने बोला कि इसके मैं चार्ज करूंगी पैसे आपको. तो वो सेकंड क्लाइंट हो गया. एंड दैट्स हाउ इट स्लोली ग्रू फ्रॉम देयर. तो मुझे लगता है पहले आसपास आप लोग फाइंड करो कि किसकी आप हेल्प कर सकते हो. कोई बिजनेसमैन है आपके घर में है, कोई फ्रेंड का जानकार है, ऐसा कुछ. एंड देन यू कैन ग्रेजुअली टुवर्ड्स इवन ऑन लिंक्डइन. अगर आप किसी और फ्रीलांसर को रीच आउट करोगे कि आई विल वर्क विद यू फॉर फ्री फॉर 1 month और नॉट फ्री, इवन इफ लाइक अ बेसिक इंटर्नशिप और समथिंग, लर्न द क्राफ्ट एंड देन यू कैन गो अबाउट इट. बिकॉज क्या होता है कि आप किसी बड़े क्लाइंट को पिच करोगे तो तुम्हें पोर्टफोलियो चाहिए. जो पोर्टफोलियो है स्ट्रॉन्ग, और उस पोर्टफोलियो में रिजल्ट कहाँ से आएंगे, यही जो है नया कोई भी आता है तो वो अटक जाता है कि मेरे पास रिजल्ट्स नहीं है. तो वो रिजल्ट्स आएंगे पहले खुद के प्रोफाइल पे काम करो, खुद का कंटेंट, खुद के रिजल्ट्स निकालो. और दूसरा आप फ्री में किसी के लिए काम करो या कम पैसे में किसी के लिए काम करो और वहां से रिजल्ट्स निकालो, फिर उसको बिल्ड करो. तो मुझे लगता है वहां से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं. और आई थिंक फेसबुक ग्रुप्स आर अ बिग
chunk of, I would say, leads that come from, because there are people who will give you basic pay for some work, and you can get high quality pay, high ticket clients also on Facebook groups. I think that is one underrated lead generation method that people think कि वो उतना leverage नहीं करते कि Facebook group से क्या आएगा, but Facebook groups are a big, because I started from Facebook groups, so I understand कि बहुत सारे leads आते हैं, तो I think that option also. लाइक अभी आपने बोला कि लोकली मतलब हम ट्राई कर सकते हैं, तो जैसे आपने बोला कि आपने अपने लोकल बिजनेस को मतलब पिच किया था, तो आपने किस तरह से उन्हें पिच किया? क्योंकि स्टार्टिंग में ये चीज एक्सप्लेन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, जब हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं होते, तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उन्हें कि हम आपका ब्रांड बिल्ड करेंगे, आपको इसको क्या प्रॉफिट होगा, ये एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल होता है बिगनर्स के लिए। तो आप बता सकते हो आपने कैसे तो पिच किया था? मुझे लगता है कि प्रीवियस केस स्टडीज बहुत बड़ा काम प्ले करती हैं। अगर आप फाइंड आउट करते हो कॉम्पिटिटर्स उनकी नीश में जो बना रहे हैं कंटेंट पहले से, और जिन्होंने लोकल सोर्स से कुछ बड़ा बनाया है, दैट हेल्प्स अ लॉट। तो मैंने उन अंकल को, जैसे इंस्टाग्राम पे एक और पेज था जो हमारे, मतलब हमारे सिटी में नहीं, किसी और सिटी में था, बट दे आर एट द सेम लेवल, जो अंकल थे उनकी शॉप के सेम लेवल पे थे, और मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने जब अपना इंस्टाग्राम शुरू किया तो उसके बाद उन्होंने वहां से पैसे कमाने शुरू किए, आप भी कर सकते हो। एंड बिकॉज इट वाज फ्री, मुझे लगता है उन्हें कन्विंस करना इजी हो गया। ही वाज लाइक अच्छा ठीक है, तुम ट्राई करके देख लो। तो वहां से मुझे फायदा हो गया। और ऑल्दो लेकिन उन अंकल का मुझे एक फायदा हुआ कि अंकल ने मुझे दिए लेकिन 2 महीने के बाद पैसे, क्योंकि उन्होंने बोला कि सेल हुई है तो आई विल गिव यू, फ्री पे करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, मतलब जब आप किसी के साथ काम शुरू कर रहे हो, द मेन पॉइंट इज आपको उनको आरओआई समझानी पड़ेगी कि ये करने से आपको फायदा क्या होगा, राइट। अगर आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं किसी क्लाइंट को रीच आउट करती हूँ और मैं बोल रही हूँ कि $1000 का ऑफर है मेरा, तो मुझे उन्हें ये कन्विंस करना पड़ेगा कि ये $1000 से आपका $5000 का फायदा कम से कम होगा, तभी वो आपको अपने पैसे देने के लिए तैयार होगा, राइट। सो यू हैव टू ब्रिंग द आरओआई टू टेबल कि इससे आपको प्रॉफिट क्या क्या है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। और दूसरा एक जो हम सेल्स टेक्निक में यूज करते हैं, लॉस अवर्जन, कि अगर ये नहीं करोगे तो आपको नुकसान क्या क्या हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा हाईलाइट है। तो मैंने अंकल को समझाया कि आज की न्यू जनरेशन, स्पेशली हम कोविड में लॉकडाउन में थे, तो जब मैंने उन्हें समझाया कि एवरीबडी इज ऑन देयर फोन ऑल द टाइम, और अगर आप उनके सामने दिखोगे, नहीं दिखोगे तो क्या नुकसान है, और दिखोगे तो क्या फायदे हैं। तो जब मैंने उन्हें ये समझाया तो मुझे लगता है कुछ उनकी समझ में आया होगा। राइट, आपने काफी अच्छे पॉइंट मेंशन किए यहाँ पे कि हमें आरओआई पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब न्यूबी स्टार्ट करते हैं तो वे एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते कि वे उससे क्या आरओआई देने वाले हैं। तो ये काफी अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। जैसे अभी आपने बता दिया कि हम क्लाइंट लोकली भी फाइंड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी फाइंड कर सकते हैं, बट जो फ्रीलांसर्स स्टार्ट आउट कर रहे हैं वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं स्टार्टिंग में कि हर मंथ उनके पास क्लाइंट रहे? राइट। हर मंथ क्लाइंट, आई थिंक फ्रीलांसर्स बड़े बड़े भी नहीं इंश्योर कर सकते कि हर मंथ क्लाइंट आए उनके पास में। तो बट हाँ, लीड पाइपलाइन मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 चीजें हैं। वन इज ऑफ कोर्स योर ओन सोशल प्रेजेंस, कि तुम्हारा पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रांग है, कि तुम्हें कितनी महीने की लीड्स आ रही है, कि तुम उन्हें वेट लिस्ट कर सको कि अभी मेरे पास बैंडविड्थ नहीं है, मैं तुमसे 1 महीने बाद कनेक्ट करता हूँ, दोस काइंड ऑफ थिंग्स। बट द अदर थिंग यू कैन इंश्योर इज अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके की टारगेट नीश में जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई नॉट टू पिच एनीवन एंड एवरीवन। जब मैंने शुरू किया था तब मैंने यही सबसे बड़ी मिस्टेक की थी, और मुझे लगता है उसकी वजह से मेरी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई, कि मैं सबको पिच कर रही थी, फ्रॉम ब्यूटी सलून्स टू B2B SaaS फाउंडर्स, सबको मैं बना दूंगी तुम्हारा पर्सनल ब्रांड, ये वो। क्योंकि व्हेन यू अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर नीश में ना, तब जो आपकी एक्सपर्टीज बिल्ड होती है कि मुझे अच्छा टेक का मुझे मालूम है, टेक का नॉलेज है मुझे, टेक में मैं बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, तो मैं टेक के फाउंडर्स को रीच आउट करती हूँ। और उनके पास फिर जब आप लेके जाते हो कि मैंने पिछले वाले को इतना हेल्प किया था, या मैं दूसरे इंसान के साथ काम कर रही हूँ जो कि आपकी सिमिलर नीश में है, उसको मैं हेल्प कर रही हूँ, तब आपकी जो एक्सपर्टीज बिल्ड होती है, दैट इज प्रीटी बेटर। तो जब आप फ्रीलांसर हो और आप फॉर एग्जाम्पल एक रियल एस्टेट के क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो, आपके पास एक दो क्लाइंट है, तो ट्राई टू पिच मोर रियल एस्टेट के क्लाइंट्स ओनली, क्योंकि उनको कन्विंस करना इजी हो जाएगा। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिल्डिंग विद योर क्लाइंट, नॉट जस्ट डिलीवर वर्क। उनको ऐसी सर्विस दो कि जब आप उनको बोलो कि अच्छा मेरे पास एक ओपनिंग है अगले महीने, अगर आपकी नजर हो तो मुझे बताना, तो मुझे आप क्लाइंट को रिजल्ट ला के दे रहे हो एंड यू हैव अ गुड रेपो विद देम, तो कोई भी क्लाइंट आपको ना बोलेगा उस टाइम पे। मेरे साथ आई वुड से गॉड ब्लेस कि मुझे ऐसे क्लाइंट्स मिले कि जब भी मैं क्लाइंट्स को बोलती हूँ कि आई हैव अ ओपनिंग, आई ऑलवेज गेट रेफरल्स। तो इट हैपेंस वेरी स्विफ्टली कि आप अपना सर्विस इतना अच्छी दो, आप इतने अच्छे रिजल्ट आके दो कि क्लाइंट खुद आपको आगे से आगे पहुंचाता रहेगा। तो दैट हैपेंस पर्सनल ब्रांडिंग को। मुझे लगा फ्रीलांसर्स को ये बहुत लेवरेज करना चाहिए। एंड ऑल्सो कीप गोइंग बैक ऑन नंबर्स, कि मुझे फॉर एग्जाम्पल 1000 हिट कर, तो देयर आर 2 ways टू हिट $1000, कि आप $200
5 क्लाइंट पकड़ोगे, हम्म, या फिर आप अपना $200 को इंक्रीज करके $500 के 2 क्लाइंट पकड़ोगे, राइट? तो यू नीड टू फिगर आउट कौन सी डायरेक्शन में जाना है, मुझे मेरी सर्विस को प्रीमियम करना है या मुझे क्लाइंटेल बढ़ाना है। जब आप ये समझ जाओगे कि हम्म, कौन सी तरफ जाना है, तो आपके एफर्ट्स भी डबल डाउन हो जाते हैं उसी तरफ। तो वो राइट एक राइट। बहुत ये काफी अच्छा बिल्कुल। पॉइंट था ये वाला, मतलब इस तरह की हमें सर्विस को डबल डाउन करनी चाहिए कि हम काफी सारे क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे हैं, इससे अच्छा तो हम अपनी सर्विस को 2 क्लाइंट्स को दें, बट हमारा अमाउंट ज्यादा हो तो हमें इससे बेनिफिट भी होगा और टाइम भी सेव होगा हमारा। तो लाइक अभी आपने बोला कि हमें अपने आप को डिफरेंशिएट करना करते रहना चाहिए, तो अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो? आपकी यूएसपी क्या है? मतलब हम अभी देखा कि पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट काफी सारे पीपल है, लिंक्डइन पर काफी सारे पीपल है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है, बट हम अपने को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं बिगनर्स? how do you stand out? I think personal experience is one thing that will help you stand out from most people. So for example, if I tell clients से मैं जब कॉल पे जाती हूँ, client is like how you can help me better, one is of course my portfolio कि मैंने इतने रिजल्ट करके दिए हैं and I have that to back up कि ये रिजल्ट है, तो one is that. Two, of course, the serviceability and the process that you make the client go through from onboarding to offboarding, आपका सिस्टम कैसा है, क्लाइंट को कितनी परेशानी आती है आपके साथ काम करने में, कितना आप सीमलेसली उनको कि कंटेंट अप्रूवल का प्रोसेस इतना इजी हो रहा है कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं अपना देना पड़ रहा। तो जो क्लाइंट का एक्सपीरियंस है, अगर आप वो बहुत स्मूथ कर देते हो, तो फिर वो क्लाइंट रिटेन करेगा, तो फिर वो क्लाइंट आपके बारे में ही बिकम्स अ स्पोक्स पर्सन फॉर यू, राइट? तो वो एक प्रोसेस बन जाता है। मुझे लगता है दैट इज सेकेंड डिफरेंशिएटर कि आपका सर्विस की प्रोसेस क्या है। एंड थर्ड वुड बी आप कितने अच्छे सेल्स पर्सन हो, कितने अच्छे कम्युनिकेटर हो। आप अपनी फॉर एग्जाम्पल अभी पहले की जनरेशन थी, आई वुड से वो थोड़ा सा अपने आप को बूस्ट करने में हिचकिचाती थी। दे डोंट से कि हमें ये आता है, हमें वो आता है। अभी वो बिल्कुल चेंज हो गया है। अभी इट्स लाइक हाउ वेल यू कैन सेल योरसेल्फ, कि तुम अपने आप को अपनी सर्विस को बेच कितना अच्छे से सकते हो, राइट? तो इट्स अबाउट कि आप कैसे बेच रहे हो अपनी सर्विस को, कि आप कैसे पूछ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यास्मीन अलीक का कंटेंट पढ़ोगे किसी दिन लिंक्डइन पे, तो he never sells. He always talk about how kind he is, how he helps somebody, how he wants to help people, right? तो वो उसकी यूएसपी बन गई कि he's very kind, and he's actually I have had a good chance to have a conversation with him a few times, and he's a very generous person, he's a very kind person. तो वो आपकी यूएसपी बन जाती है। तो दैट्स हाउ यू बिल्ड योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ, तो माई इज फ्रेंडली रेपो, लाइक आई वांट टू बी फ्रेंड नेक्स्ट डोर, कि आप कभी भी मुझे अप्रोच करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हो इजीली एंड आई विल बी एबल टू हेल्प यू। वो मैं लेके चल रही हूँ और उसी पे मैं काम करती रहती हूँ, उसी तरीके का कंटेंट मैं बनाती हूँ। तो आप अपनी पहचानो कि मेरे अंदर क्या अलग क्वालिटी है जो मैं स्टैंड आउट करवा सकता हूँ इंडस्ट्री में। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इलॉन मस्क इज नोन फॉर हिज रूड एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, क्योंकि वो समझ गया कि मुझे ये मेरा एंगल है, मेरे को ये स्ट्रेट फॉरवर्ड और मीननेस से मेरा काम चल रहा है, लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं उस पर्टिकुलर नोशन से, वो उस डायरेक्शन में जाते हैं, राइट? प्रखर शर्मा जब आप लिंक्डइन पे कंटेंट पढ़ोगे तो ही नेवर यूजेस पिक्चर्स, तो उसको समझ आ गया कि मेरा कंटेंट पार्ट इतना स्ट्रांग है, मेरा टेक्स्ट इतना स्ट्रांग है कि मुझे पिक्चर्स की जरूरत नहीं है टू गेट मोर इम्प्रेशन, राइट? तो उस तरफ तो आपको एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगा कि मैं क्या में स्टैंड आउट करता हूँ, और फिर उस पे आप डबल डाउन करोगे बाद में। लाइक अभी आपने बोला कि आप मतलब फ्रेंडली जोन में है कि आप सबको हेल्प करते हो और कोई भी आपसे पूछेगा क्वेश्चन तो आप कभी मना नहीं करोगे। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी बिगनर्स को जो मतलब सच में जानना चाहते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या होता है, वो आपके पास जरूर जा सकता है, आपके डीएम में जरूर जा सकता है इजीली। बिकॉज मैंने काफी सारे लोगों को देखा है फेस करते हुए एक सिचुएशन की स्टार्टिंग में जब बिगनर होते हैं ना, तो एक सबको डीएम्स करते हैं बट कोई रिप्लाई नहीं करता स्टार्टिंग में। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसलिए हम ये पॉडकास्ट करते हैं, इसलिए हम आपको बुला रहे हैं इस पॉडकास्ट में जिससे उन बिगनर्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बिल्कुल। I think it's a great initiative you are taking. I mean, you are doing हाँ। a commendable job. Yeah. जैसे बिगनर स्टार्ट कर रहे हैं तो अभी वो जीरो पर है, तो वो कैसे अपने आप को इतना स्केल कर सकते हैं कि वो आपकी तरह 2.5 लाख तक अपने आप को स्केल करे? तो आप कुछ स्टेप्स में बता सकते हो? Okay, I would say step one is profile optimization. You have to have a good professional profile जिस पे जाते ही इंसान को समझ में आ जाए कि आप क्या सर्विस बेच रहे हो, आप कितने प्रीमियम चार्ज करने वाले हो, वो आपकी प्रोफाइल से समझ में आना चाहिए कि आपकी पोजीशनिंग कैसी है, आपकी कलर ब्रांडिंग कैसी है, आपने क्या कीवर्ड्स यूज किए हैं। तो एक तो हो गया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। टू, यू हैव टू हैव अ सॉलिड पोर्टफोलियो। जैसे जैसे आप काम करते जाओगे, बिल्ड दैट सॉलिड पोर्टफोलियो। थ्री, योर स्किल नीड्स टू बी गुड।
अगर आपकी स्किल ही अच्छी नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रही हूँ लेकिन मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो फिर मैं कभी भी $1,000 नहीं पहुंच पाऊंगी, कभी भी मैं जीरो से स्टार्ट करके ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी। राइट। तो फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड योर स्किल और कॉन्स्टेंटली, क्योंकि प्लेटफॉर्म इज चेंजिंग एवरी डे। वो नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया और उसके बाद वही चलता रहेगा, क्योंकि कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है प्लेटफॉर्म। तो यू हैव टू कीप लर्निंग, बी अप टू डेट अबाउट क्या चल रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। तो अगर आप उस चीज पे काम करते रहोगे तो यू विल ग्रो। 3 आई वुड से कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस रेंज जो इंक्रीज करना शुरू किया था वो आफ्टर आई हैड अ सॉलिड रिजल्ट्स फॉर 1 ईयर फॉर मोस्ट ऑफ माय क्लाइंट्स। लाइक आई वाज कि अच्छा मैंने 5 नीश में काम किया और पांचों नीश में मैंने ये रिजल्ट्स ला के दिए हैं, तो उसमें से जो 3 नीश में मेरे रिजल्ट ज्यादा बेटर थे, मैंने उन 3 नीश में अपने प्राइसेस इंक्रीज किए। rather than doing in every niche। उन 3 नीश में मैंने बोला कि मैं इस नीश के अच्छे रिजल्ट ला सकती हूँ, तो इसके लिए मैं ज्यादा चार्ज करूंगी, क्योंकि मुझे मार्केट में इनके लिए लीड्स भी ला रही हूँ, फॉलोअर्स भी ला रही हूँ, जो भी मतलब रिक्वायरमेंट है, गोल्स पूरे कर रही हूँ, तो वहां से आप डबल डाउन कर सकते हो। प्लस इफ यू आर गेटिंग, for example, if you're reaching out to somebody and pitching yourself and price, and if you're getting 3 to 4 yes continuously, I would say increase your price from the 5th client। so that's a shorter way कि अच्छा आप यहाँ से prices बढ़ा सकते हो। तो keep finding new methods of finding leads। I would say personal branding हो गया, outreach हो गया, email campaigns run करो, automation, LinkedIn outreach, DM, try different methods कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। And of course networking, I would say networking helps you big time। जब आप किसी बड़े क्रिएटर के साथ अपना कनेक्ट बना लेते हो, राइट। तो आपका प्रोसेस है फाइंडिंग क्लाइंट्स बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि देन अगर वो आपके साथ कनेक्टेड है, वो आपके कंटेंट के साथ इंगेज कर रहे हैं, यू हैव अ सोशल प्रूफ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके साथ अगर वो कर रहा है इंगेज, इसका मतलब रिलेटिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, ही इज बिलीविंग इन मी, तो आई थिंक आई हैव अथॉरिटी। तो फिर आप उसको लेवरेज कर सकते हो। तो आई वुड से नेटवर्किंग इज अ बिग गेम चेंजर कि आप कोशिश करो कि आप बड़े क्रिएटर के साथ कनेक्ट करो, उनके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ, कनेक्शन बनाओ, ताकि वो आप कर सकें हाउ टू गो फॉरवर्ड फ्रॉम इट। तो दैट इज वन वे। एंड आई वुड से गो फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स शेमलेस, मतलब पिच करो जब तक वो ना कर दे। जब तक वो नहीं करूंगा तुम्हारे साथ तब तक तुम पिच करते रहो, करो 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 करो। मेरे आई क्लोज्ड अ क्लाइंट 7th फॉलो अप पे, वाओ। आई थिंक 5 लगे मुझे उसको कन्वर्ट करने में। मैंने मैसेज किया, मैसेज करती रही, बट डोंट मैसेज की सिंपल की फॉलो अप या गेटिंग एन अपडेट और ऐसा, तो फिर क्लाइंट इरिटेट हो जाएगा। आई यूज टू सेंड हिम लीड मैग्नेट्स, या फिर उसकी इंडस्ट्री में कुछ ट्रेंडिंग चल रहा था तो मैं उसको कहती थी कि ये अगर आप अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करोगे तो ये आपको बहुत फायदा होगा। She was like, "Oh, she's genuinely wants to help me, she genuinely know about the industry। That's how I converted that client after 7-8 follow-ups। But the important thing is definitely अपना मतलब बेचो, वही करो आप। तो मुझे लगता है वो एक रेजिलियंस जो आप क्रिएट करते हो अपने अंदर, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। बिल्कुल हार नहीं माननी है, करते रहना है जब तक सामने वाला कन्वर्ट ना हो जाए। लाइक या अभी आपने ट्राई डिफरेंट मेथड्स कि मतलब फेसबुक ग्रुप्स ट्राई कर लिया, स्लैक ग्रुप्स ट्राई कर लिया, लिंक्डइन अकाउंट पे पर्सनल ब्रांड बना लिया, वहां से ट्राई कर लिया, ईमेल कैंपेन रन करके ट्राई कर लिया। देन यू फिगर आउट कि मेरे लिए ये वाला आउटरीच का चैनल है, ये वाला लीड का चैनल सबसे अच्छा काम करता है, फिर उस पर डबल डाउन करो, फिर वहां एफर्ट ज्यादा डालने शुरू करो। लाइक अभी दैट आपने आई बोला कि ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप कोई फ्री टूल यूज करते हो ईमेल मार्केटिंग के लिए या फिर कोई पेड टूल? So I'm using smartreach.io. That is a paid tool, matlab, and there is instantly.ai. That is a paid tool also. But they also offer a 14-day, 15-day free trial period. So what you can do is try to run your campaign for 15 days and see if you're getting results or not. अगर suppose 15 दिन कैंपेन रन करने के बाद आपका एक भी क्लाइंट क्लोज हो जाता है, सपोज 30-40,000 का एक क्लाइंट, तो आपका सारा साल का खर्चा ईमेल कैंपेन का तो महीने में निकल जाएगा। राइट। तो यू कैन डबल डाउन दैट लाइक अभी इजीली। आप कितने आउटरीच करते हो डेली बेसिस पर? कितने पीपल को रीच आउट करते हो? मैं बहुत ज्यादा नहीं कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास बैंडविड्थ थी 5 से 7 क्लाइंट्स की है। मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट्स से काम नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव अ 4-year-old एट होम, बच्चा संभालना रहता है, तो मैं बहुत ज्यादा क्लाइंट नहीं लेती हूँ। बट जब भी मुझे जरूरत होती है तो मैं कैंपेन रन कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई नो कि मेरे अगले महीने इस क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट ऐड होने वाला है और मुझे इसके साथ कॉन्टिन्यू नहीं करना, तो आई रन अ कैंपेन फॉर अ मंथ एंड देन आई कैन क्लोज। तो अगर आपको ईमेल कैंपेन से रिजल्ट्स देखने हैं तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, मैं कभी मैन्युअली भी ट्राई करती हूँ, तो मैन्युअली रिजल्ट आ बेटर कि अगर आप पर्सनलाइज पिच करते हो तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे।
ऑब्वियसली, मतलब वो तो नॉन नेगोशिएबल है। जब आप पर्सनलाइज करके डाल रहे हो कंटेंट, हम्म, तो आपको ऑब्वियसली उसका ओपन रेट ज्यादा होगा, ईमेल का आपको रिजल्ट ज्यादा बेटर मिलेंगे। तो ईमेल कैंपेन्स अगर आप मैन्युअली कर रहे हो तो आप कम नंबर में कर सकते हो, दैट इज व्हाट वी से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो तब आपको रिजल्ट बेटर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है पर्सनलाइज मैन्युअली कर, तो यू कैन रन अ कैंपेन। तो मुझे लगता है वो अराउंड 1000 2000 ईमेल्स अ मंथ आप ट्राई कर सकते हो, 2000 ईमेल्स। और फिर उसका ओपन रेट इज 3-4 क्लाइंट्स, दैट इज जनरल इन इंडस्ट्री की 3 to 4 क्लोजर हैपन व्हेन यू रीच आउट टू 2000 3000 पीपल। तो वो एक आप ट्राई कर सकते हो। या राइट राइट। थैंक यू सो मच, आपने इतना कुछ बताया। मतलब लाइक स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिगिनर स्टार्ट करता है तो वो 100 या मतलब 200 पीपल को रिच आउट करके छोड़ देता है, और उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता कितने क्लाइंट को उन्हें रिच आउट करना चाहिए। अगर आप 1 के या 2 के क्लाइंट को नहीं रिच आउट करोगे तो आप कभी भी मतलब ऐसे मतलब रिच आउट नहीं कर सकते क्लाइंट्स को, नहीं, आपको क्लाइंट ही नहीं मिलेंगे। आपको सी द पॉइंट इज आफ्टर 1000 ईमेल तुम्हें समझ में आएगा कि मेरा ओपन रेट कितना है, कि मेरे खुले कितने हैं ईमेल। उस ईमेल को अगर खुले अच्छे हैं, अच्छा अमाउंट है, तो इसका मतलब सब्जेक्ट लाइन सही थी। अब मुझे कंटेंट देखना है कि मेरी टेम्पलेट में क्या प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद अगर उसमें केस स्टडी अच्छी है, कॉल बुक हो गई है, तो फिर आपको समझना है कि कॉल बुक के बाद क्या इशू आया, कि मेरी सेल्स कॉल में क्या प्रॉब्लम थी। राइट। क्योंकि अगर आप 1000 ईमेल नहीं दोगे तो तुम यही समझ नहीं पाओगे कि मेरे कौन से स्टेप में प्रॉब्लम थी, कि मेरी सब्जेक्ट लाइन में प्रॉब्लम थी, मेरी जो मैंने लीड लिस्ट निकाली, जिन लोगों को मैंने रीच आउट किया, वो आईसीपी सही था या नहीं था, मेरा सीटीए सही था या नहीं था। ये तब समझ में आएगा जब आप एक बल्क में ईमेल्स भेज दोगे, तब आपको समझ में आएगा कि विच इज द प्रॉब्लम एंड मैं उसको कहाँ सॉल्व कर सकता हूँ। दैट इज वन थिंग व्हेन इट कम्स टू बिल्कुल, जब तक कंटेंट। ट्राई नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कहाँ पर इश्यू है। ऑल्सो जैसे आप अभी आप जैसे पर्सनल ब्रांडिंग स्पेशलिस्ट, तो आप काफी एक्टिव भी हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आप ऐसी कौन कौन से आप मतलब कुछ स्किल मेंशन कर सकते हो जो 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है? I would say storytelling. Storytelling is something that is people take very much for granted कि कहीं से उठा के अपना थोड़ा सा डाल के चिपकाने की कोशिश करते हैं, but that doesn't work. It has to be raw, authentic storytelling. तुम्हारी अपनी जो कहानी है वो तुम जब सुनाओगे तभी तुम रिलेट कर पाओगे। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं, तो वही बात, अगर आप स्टैंड आउट करना चाहते हो तो स्टोरी टेलिंग और उस कहानी को तुम सुनाते कैसे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बहुत सारे कॉमेडियंस हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर आप देखोगे तो वो जिस तरीके की कहानियां सुनाते हैं, अगर जाकिर खान बनना है तो जाकिर खान की कहानी सुनानी पड़ेगी ना। मतलब तो वो एक बात है। मुझे लगता है स्टोरी टेलिंग इज समथिंग दैट इज गोइंग गो ब्लो अप इन यूट्यूब और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, बिकॉज लिंक्डइन पे भी वीडियो कंटेंट आ रहा है। तो मुझे लगता है बहुत लोग अभी स्टोरी टेलिंग अगर अच्छे से सीख लेते हैं तो दैट कुड। एंड एज अ फ्रीलांसर आई थिंक सेल्स स्किल इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर तुम्हें कॉल पे सामने वाले को परसुएड करना आ रहा है कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ, ये चीज मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए ज्यादा जरूरी है। मैं तो बेची पैसे देंगे, लेकिन तुमको इसकी जरूरत है। अगर तुम ये सीख लोगे ना कि तुम सामने वाले को ये समझा पाओ कि तुम्हें ज्यादा जरूरत है इसकी मुझसे, और अगर तुमने मुझे जाने दिया तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो वो skill अगर तुम में आ गई तो फिर तुम कर लोगे फिर तुम्हारा धंधा बिल्कुल, बिल्कुल। अब हमारा मतलब क्विक क्वेश्चन राउंड स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको सारे क्वेश्चन के आंसर क्विकली देने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लाइक आपकी क्रेज़िएस्ट मतलब क्लाइंट मेमोरी क्या है अभी तक की? Uh, okay, I have a good and bad one for client memory when it comes to client memory. One first is I think initially जब मैंने शुरू किया था तो मेरा एक क्लाइंट था जिसके साथ मैंने काम किया, और उसने बोला कि मुझे आपका काम पसंद नहीं आया, आपने काम अच्छा नहीं किया, ये जो मैं चाह रही थी वैसा काम नहीं है, ऐसा करके उन्होंने मुझे बोला, और उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं की। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं काम पसंद आया, इट्स फाइन। बट देन उन्होंने मेरा काम पब्लिश किया, यूज किया सारा काम। तो बोला कि अगर आपने सारा काम यूज किया है तो फिर मुझे उसके पैसे मिलने चाहिए। तो 5 महीने फॉलो अप के बाद मुझे वो पैसे मिले, और वो ज्यादा बड़ा नहीं, मेरे ख्याल से 12,000 का अमाउंट था, ऐसा कुछ था। और उसके लिए मुझे 5 महीने उनके पीछे पड़ना पड़ा कि मुझे पैसे, आपने मेरा काम यूज किया है तो मुझे पैसे चाहिए उसके। तो वो एक क्रेजी स्टोरी थी कि हाउ पीपल शेमलेसली यूज योर वर्क बट देन डोंट पे यू। तो वो एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस मैं बोलूंगी मेरा रहा। एंड द गुड स्टोरी वुड बी जो मेरा फर्स्ट पर्सनल ब्रांडिंग का क्लाइंट था, जब मैंने उनको ऑनेस्टली मैंने कॉल पे उनको बोल दिया था कि मैंने कभी नहीं किया है, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे करना है, तो मैं आपकी प्रोफाइल पे जितना मुझे आता है मैं पूरी कोशिश करूंगी, आप मुझे एक चार दो। मैंने उनको बड़ा ऑनेस्टली बोला था। 2 महीने के बाद रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे थे।
तो he was at 7,000 फॉलोवर्स पहले से, और मैं फॉलोवर्स बिल्ड करने की कोशिश कर रही थी शुरू में, तो नहीं आए थे रिजल्ट। आई थिंक 2 महीने के बाद he was at 9,000 और समथिंग, ओनली 2,000 फॉलोवर ग्रू, ऐसा कुछ था। मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे नहीं होगा, आपने इतना विश्वास किया। मैंने उनको ऑनेस्टली बोला मुझसे नहीं हो रहा है ये। They was like I believe you, और तुम करती रहो इसको, 2 महीने और करके देखो, फिर देखते हैं, तुम कुछ एक्सपेरिमेंट कर लो, कुछ सीखो वीखो, करो इसको। और उसके बाद मैं मतलब मुझे लगा अगर क्लाइंट इतना बिलीव कर रहा है तो शायद मुझे करनी चाहिए। तो फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस से सीखा, समझा और अपनी प्रॉब्लम निकाली, और उसके बाद दैट अगले 3 महीने में वो अकाउंट 9,000 से 16,000 ग्रो कर गया। तो मुझे समझ में आ गया था कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही, मुझे लग रहा है मैं गिव अप कर देती अगर क्लाइंट मुझे बोल देता उसमें, तो मैं भी छोड़ देती। बट क्योंकि क्लाइंट ने मुझे पुश किया, तो मुझे लगता है ऐसे अच्छे क्लाइंट्स अगर आपको मिल जाएं तो स्टार्टिंग में काफी मतलब ये काफी ज्यादा आपके साथ काफी अच्छी स्टोरी है कि लाइक क्लाइंट ही आपको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये काफी अच्छा था। बिल्कुल। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेपो, जो मैंने बोला ना कि आप अगर सर्विस कैसी दे रहे हो, आपने उसके साथ कनेक्ट किया। मैंने क्लाइंट के साथ, जब भी क्लाइंट ने मुझे कुछ काम बोला, ओवर डिलीवर करने को बोला, या कहीं पे कुछ उसने प्रॉब्लम शेयर की, या ऑनेस्टी जो मेरी थी कि मैंने शुरू में उन्हें बताया कि भाई मुझे नहीं आता है, मैं सीख रही हूँ ये वो, तो मुझे लगता है जो आप सर्विस का रेपो जो बिल्ड करते हो क्लाइंट के साथ, जो रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, वही आपको दूर तक लेके जाएगा। बिकॉज इन द एंड इट्स अबाउट कम्युनिटी बिल्डिंग, कि आप अपना रिलेशनशिप क्या बना रहे हो, whether it's about your personal brand, whether it's about your social media presence, whether it's about your business, it's about community building in the end। तो मुझे लगता है वहां से हाँ, जैसे आपकी जर्नी ऐसी रही है, आउटरीचिंग करना या फिर क्लाइंट को बार बार फॉलो अप भेजना, तो आपने कभी गिव अप नहीं किया है। तो आपका इस जर्नी में रोल मॉडल कौन रहा है? रोल मॉडल आई वुड से, सो प्रोफेशनली देर आर 2-3 पीपल जिनसे मैं बोलूंगी थोड़ा 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 मैं लेना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल लारा अकोस्टा, यास्मिन आलिक एंड क्रिस डो। मुझे लगता है कि इन तीनों की जर्नी बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर भी वो इतना ग्रो कर पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल यास्मिन, इट्स द काइंडनेस that he approaches his content with. Lara, her ambition towards omnipresence, like she's active on Instagram, on Twitter, on YouTube, on LinkedIn, everywhere. So that is the second thing, how she's managing it all, and cohort भी कर रही हैं, दूसरों को सिखाती भी है, मास्टर क्लास भी है, clients भी handle कर रही हैं, consultation calls भी है, like she's doing everything that is possible in this domain। मुझे लगता है that is something I would like to learn from her, or something like that। And Christo, I think sales strategy, he's like the OG। वो कुछ भी बेच देंगे वो, मतलब तो उनको दे दो तो वो कुछ भी बेच देंगे। That is something I would love to incorporate। Personally, I think it's my father, I would say। So he used to be a school principal पहले, now he has retired। अभी उन्होंने एक रिटेल मार्ट शुरू किया है हमारे वहीं सिटी में। तो आफ्टर 60 जब सब काम हो गया है, he still wants to work, he still wants to try different things, he still wants to learn। तो वो मुझे लगता है कि that passion, अगर उसका मैं 20% भी अपने अंदर ला पाई, वो पैशन उनमें है कि 60 के बाद भी वो लगे हुए हैं सुबह 6 बजे उठ के। तो I'll be very happy। तो वो एक, मुझे लगता है मुझे उनसे आता है रेजिलियंस, तो मुझे लगता है कि मैं अगर उस डायरेक्शन में जा पाई थोड़ा सा, that is good। So I think my काफी father। इंस्पायरिंग है आपके सच फादर। में काफी इंस्पायरिंग है। लाइक अभी अभी आपने बोला था कि आप मंथली बेसिस पे आपने 1.2 के मतलब 1.5 के तक अर्न कर रहे हो, तो आपकी स्टार्टिंग इनकम कितनी थी, मतलब आपने फर्स्ट इनकम क्या अर्न करी थी? Oh my God, it was 3,000 रुपीज आई गेस। और मुझे लगता है मैं जितना अब काम कर रही हूँ उसका 3 गुना काम करती थी, बट वो काम थोड़ा क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्योंकि हम कंटेंट लिख रहे थे। तो मैं लिखती थी 1500 वर्ड्स एट 12 पैसा, 1500 वर्ड, तब जाके वो, तो उतने आर्टिकल लिखती थी। और तब माय सन वाज वेरी स्मॉल, तो ही यूज्ड रात को 2-2 बजे उठ के उसको दूध पिलाना है, 4 बजे दूध पिलाना है, तो मुझे बार-बार उठना है, सारा प्रोसेस। तो जब वो सोता था 2 घंटे, तो मैं काम कर रही हूँ। तो आर्टिकल लिखने में टाइम बहुत ज़्यादा, क्योंकि 1200 वर्ड का आर्टिकल है, तुम लिख रहे हो, और तब तो चैट जीपीटी भी नहीं था, हमारी हेल्प के लिए, तो एआई भी नहीं था। तो तब हमें मतलब ऐसा पूरा प्रोसेस लिखना एंड ऑल, तब बहुत मेहनत था। तो बिल्कुल। या लाइक फर्स्ट आपने मंथ 12 रुपए से स्टार्ट किया और आप 1.2 की 1.5 के अर्न कर रहे हो, सच में काफी लाइक इंस्पायरिंग है सच में। हाँ, लाइक अरे जब सॉरी। मैंने 6 महीने काम करने के बाद में, जब मैंने एजेंसी को रीच आउट किया कि आई विल वर्क विद यू, तो तब तो पर्सनल ब्रांड भी नहीं था, मतलब मैं ईमेल पे ही मैंने उनको रीच आउट किया था। तो मैंने उनको 1 रुपीज पर वर्ड बोला था। तो मैं इतना डर रही थी कि ये 12 पैसे, मतलब 12 से मैं 30 पैसे पे आ गई थी धीरे धीरे।
मुझे लग रहा था 1 रुपए में ये मुझे नहीं देंगे, बट दे बट हाँ ठीक है, 1 रुपए में उन्होंने बोला हाँ ठीक है, वी विल वर्क, आपका काम अच्छा है। देन आई वाज लाइक ओके, ये अच्छा, ऐसे बढ़ भी सकते हैं पैसे, यहाँ से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो वो मैंने वहां से सीखा कि अच्छा हाँ, यहाँ से हो सच में पाएगा। आपकी स्टोरी बट सच में काफ़ी इंस्पायरिंग है, मतलब वो लाइक 1 रुपए से 2.5 लाख तक जाना सच में इंस्पायरिंग है बहुत सच ज़्यादा। में ये सच में लगता है हमारी ऑडियंस अगर सच में इस पॉडकास्ट को डीपली देखेगी ना, तो फिर अंडरस्टैंड करेगी आपकी जर्नी को, आपने जो स्ट्रगल फेस किया है, ऑल्सो आपने किस तरह से अपने आप को ग्रो भी किया है। मतलब वे डेफिनेटली आपसे इंस्पायर होने वाले हैं, और ये पॉडकास्ट सबसे फायरिंग जाने वाला है सच में। थैंक यू सो मच। मॉम्स भी आपसे रिलेट करेंगी कि राइट। बच्चे को भी संभालना है, साथ में काम भी करना है, ये सब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने सब कुछ मैनेज किया है, तो सच में बहुत That's इंस्पायरिंग tough. है। I would say it's never easy. मुझे लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है जो कीप्स मी गोइंग, कि मेरा बेटा, मुझे लगता है कि जब मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है मुझे इसके लिए कुछ बनना है, कोई आइडेंटिटी मेरी अपनी मुझे स्टैब्लिश करनी है, ताकि कल को वो बड़ा होके देखेगा तो वो लगेगा कि अच्छा मेरी मम्मी ने अपने लिए इतना मेहनत किया, तो मैं भी अपने लिए इतनी मेहनत करूँ। तो वो एक बहुत बड़ा वाई है जिसकी वजह से आई कीप गोइंग, कि मुझे करना है, मुझे करना है। तो दैट इज समथिंग मुझे लगता है कीप्स पुशिंग मी, क्योंकि उससे पहले आई वाज अ कॉलेज प्रोफेसर, तो मैं नहीं इतना एम्बिशियस थी। मुझे लगा ठीक है यार, जा रहे हैं सुबह, काम कर रहे हैं, हो गया, तो नहीं थी। लेकिन द मोमेंट मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा ऐसा आता है कि आई नीड टू बिल्ड समथिंग फॉर हिम, टू डू समथिंग फॉर हिम। तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है। तो मैं फ्रीलांसर्स को भी बोलूंगी जो भी शुरू कर रहे हैं, कीप योर वाई वेरी क्लोज, कीप थिंकिंग अबाउट कि तुमने शुरू क्यों किया है, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी हंड्रेड्स ऑफ नो बिफोर यू गेट वन यस। तो कीप गोइंग बैक टू कि तुमने शुरू क्यों किया है, क्यों तुम ये काम शुरू कर रहे हो, जो तुम्हारा वाई है वही तुम्हें आगे, बिकॉज फ्रीलांसिंग इज अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन। तुम्हें अपना ऑफर बार बार रिट्रेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंटेंट राइटर से शुरू किया था, जब तो मुझे सोशल मीडिया समझ भी नहीं थी, पता भी नहीं था। एंड अब मैं पर्सनल ब्रांडिंग में पिवट किया, मैंने स्विच किया, मुझे लिंक्डइन पे खुद का ब्रांड बनाया, अब इंस्टाग्राम मैंने शुरू किया है, ईमेल मार्केटिंग में क्लाइंट्स को ऑफर करना शुरू कर रही हूँ। तो वो सब चीजें जब आप नई नई चीजें सीख रहे हो, कर रहे हो, तो आपको बार बार सोचना पड़ेगा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको नहीं समझ आ रहा, कई बार आप कंफ्यूज, क्लाइंट्स छोड़ के भी जा रहे हैं। जैसे बीच में एक टाइम आया था जब आई वाज अर्निंग 70,000 80,000 रुपीज अ मंथ, और उसके बाद में एक क्लाइंट था जो मुझे 40,000 रुपए पे कर रहा था, तो विच वाज बिग पार्ट ऑफ दैट पेमेंट, बाकी छोटा छोटा बाकी क्लाइंट से आ रहा था। तो उसने मुझे सडनली फोन करके सुबह बोला कि भावना इस महीने से हम नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ इशू आ गया और हम इसको बंद कर रहे हैं। सडनली हाफ हो गई, लाइक अब मैं क्या करूं? तो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप फोकसिंग कि अच्छा बहुत सारे टाइम आएंगे जब आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं हो रहा, बट यू हैव टू गोइंग। राइट राइट, मतलब वो जो फेज होता है ना कि हम मतलब अर्न कर रहे थे और एकदम से वो हाफ हो गया, वो फेज जो स्ट्रगल वाला फेज है वो सच में बहुत वो वाला पेनफुल वाला फेम मतलब टाइम है। बट हम इसको डेली बेसिस पे करते रहेंगे, अपने अपनी स्किल पे बिलीव करेंगे ना, तो हम डेफिनेटली उस इनकम को हाई भी कर सकते हैं फिर। सच में आपकी स्टोरी सच में काफी इंस्पायरिंग है, और थैंक यू सो मच, आपने हमारे पॉडकास्ट में आने का टाइम दिया हमें। अब हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहोगे? Of course, I would say also I had so much fun. Matlab, I love talking about personal branding. I love talking about how people can start their own business online, because आज की डेट में there are a lot of new skills that you can build घर से ही, and then you can earn money. पहले की तरह आपके पास बहुत सारे जो ऑब्स्टेकल्स थे कि बाहर जाके पहले डिग्री पूरी करनी पड़ेगी और फिर शुरू करना पड़ेगा, वो कम हो गए हैं। तो यू हैव अ लो बैरियर ऑफ एंट्री। तो मुझे लगता है किसी को जो कुछ बिल्ड करना चाहता है अपना खुद का, जो अपनी मेहनत करना चाहता है, आई वुड से पहले आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, फ्रॉम वीडियो एडिटिंग टू थंबनेल डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, 200 अदर थिंग्स। तो एक्सप्लोर कि आपका किस चीज में इंटरेस्ट है, और अलग अलग चीजें ट्राई करो, फ्रॉम परफॉर्मेंस मार्केटिंग, जैसे कि वेदिका की स्टोरी अगर आप लोगों को पता होगा, तो 2 साल तक शी वाज ओनली डूइंग डिफरेंट थिंग्स, कि एड रन कर लिया, कुछ सामान बेच लिया, शॉपिफाई से वेबसाइट बना रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। तो डिफरेंट थिंग्स यू हैव टू ट्राई बिफोर यू अंडरस्टैंड कि ये मेरे लिए काम करता है। और जब एक बार समझ आ जाए तो फिर दिन रात लगती है बस, और बस फिर कि सी द पॉइंट इज, लोगों को लगता है फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रहे हो, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारे संडे भी खत्म हो गए, तुम काम ही कर रहे हो, कि तुम भी बोलते हो 9 to 5, और 9 to 5 ये 24/7 बन जाता राइट राइट। है। तो
मुझे लगता है कि बहुत लोगों को लगता है, मिथ है कि ये तो बहुत मजा आएगा, Right. फ्रीलांसिंग 2 घंटा काम करना है, कैफे में बैठ के और फिर चिल करना है, ऐसा नहीं होता। हम्म, मेरा बच्चा 8 बजे सोता है, उसके बाद मैं 12 बजे तक काम करती हूँ, ताकि वो सो रहा है तब मैं काम कर सकूँ। एंड इट्स नॉट जस्ट माय स्टोरी, आई नो पीपल जो ऑफिस जा रहे हैं, फिर उसके बाद शाम को आके काम कर रहे हैं। आई नो पीपल जो काम अगर ऑफिस का नहीं, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, तो भी वो 24 घंटे दे रहे हैं अपने बिजनेस को, 24 घंटे। मुझे लगता है हार्ड वर्क तो हर एक चीज में जरूरी होता है, तो घबराओ मत एंड कीप डूइंग इट, और तुमको रिजल्ट मिलेंगे। एंड आई थिंक वन थिंग आई वुड से कि अगर तुम शुरू भी कर रहे हो, तो प्लीज स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट ऑन लिंक्डइन, स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन पर्सनल ब्रांड। क्योंकि जब तुम खुद स्टार्ट करोगे अपना पर्सनल ब्रांड, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आ रही है तुम्हारे पास। मतलब इट ओपन्स सो मेनी डोर्स फॉर यू, एंड ऑलवेज बी काइंड टू अदर्स। क्योंकि जब आप काइंड हो तो यू गेट अ लॉट ऑफ कनेक्शन फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, और जब आपका नेटवर्क बड़ा बनता है तो फिर आपको हेल्प भी, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत ज्यादा मिलती है। Right, That's right. what- ये वाला Thank you. पॉडकास्ट हमारा फेवरेट बन गया है, हमारी ऑडियंस का भी फेवरेट बन जाएगा। सच में आपसे बात करके पता ही नहीं चला कि हमें अभी तक कितना टाइम हो गया, हमें 40 मिनट्स हो गए, हम आपसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बस सच में हमें बहुत मजा आया आपके साथ कन्वर्सेशन करके। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए।